Let everyone come. Ready with your books, everyone? Yes, ma'am. Right. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. अवंतिका. Beta, do you people still are you people facing any problem in the art integrated project? No, ma'am. Huh? No, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Raj. Yes, beta. Ma'am, what can we do in civics? See, in social science, you can cover any of the part, either geography or history or civics. It is not necessary that you have to cover all the three things, right? Okay, ma'am. You can go for geography, you can go for civics, you can go for history. Just one part you do. Anyone. Okay, Ma'am, we ma'am. have to only go for one part. You can go for one part if you feel that you are not able to, identify things that could be done for a particular part section of the subject. Okay. Ma'am, in geography, ma'am, we have to tell the geography of ma'am Maharashtra, ma'am, and in history, ma'am, can we tell about ma'am history of monument of Huh, Maharashtra? you can talk about the Maratha warriors, you can talk about Shivaji, you can talk about Good morning, ma'am. guerrilla good morning, Harshit. You can talk about guerrilla warfare that was practiced by these Marathas. So there are several topics that you can cover under history, right? And for geography, you can talk about the geographical location of the state, how beneficial it is, what are the advantages of the location of the state, like whatever the good morning, Vyom. Whatever the geographical location is, how it is beneficial for the state, that way you can also relate to it, right? Excuse me, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Beta, see why I am saying this, any one thing, because I have not bound you to go for a particular thing, for a particular topic. Like I told you the other day also, in class 9th and 10th, we have bounded the students for a particular topic only in the particular state. But with you people, it is not the clause. So you people can go for anything, but then make sure that you are confined to that particular part only. Right? Because see, Monday is the submission day of the project. So I don't want you people to waste your time unnecessary for, scrolling and for searching for things. So it's better you take up any one thing and then you go with it. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you talk about Dharavir? Ma'am, the Beta, slum. wait. Yes, Saksham. Now please speak. Saksham? Ma'am, Haan. yes, ma'am. Haan. Ma'am, can you talk about Dharavir? Ma'am, that's slum. Can we talk about Dharavi? हाँ, Yes, बिल्कुल, ma'am. बिल्कुल. Yes, you can. Ma'am, in which subject it will come? It will come in your history. Okay, ma'am. हाँ. क्योंकि जब बॉम्बे सिटी बना था, धारावी का जो भी मतलब हिस्ट्री है, उसमें जैसे जब बॉम्बे सिटी बनी थी, जब आपके चोल कल्चर आया था बॉम्बे में, जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई गई थी फॉर मेकिंग टू एकोमोडेट मेनी फैमिलीज, बिकॉज उस समय पे लोग माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम अदर सिटीज टू बॉम्बे. ठीक है. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग उन एरियाज को, जो लोग घर एफोर्ड कर पाते थे, दीज पीपल वर टेकिंग दीज हाउसेज ऑन रेंट. बट दोज पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड, उनका वो धीरे धीरे कंसेंट्रेशन एक ऐसी जगह पे होने लगा जो कि शायद गवर्नमेंट एरिया था, और वो होते 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 इतना बड़ा जो है वो बन गया, जिसको आज हम धारावी के नाम से जानते हैं. ठीक है. स्लम एरिया जो है. ओके. इज दैट फाइन, Saksham? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Quickly your attendance and we start with the class. Okay.
Ahana is there? Present, ma'am. Radhe? Present, ma'am. Abhishri? Present, ma'am. Okay. Akshita? Anshika Yadav? Ma'am, Anvesha? present, ma'am. Okay, Anvesha? Anvesha present. Yes. Anvesha present. Arshit Yadav? No. Ayushi Nimesh? Ma'am, Sorry. present. Avantika is there? Yes, ma'am. Okay. Aryan Gangwar is not there. Ayushi Nimesh is there. Avantika is there. Not there. Harshit? Harshit? Present, ma'am. Ma'am, some background voice is coming ना मैम कोई हॉर्न बजा रहा है. कोई नहीं वो हो गया बंद हो गया किसी और का माइक ऑन था शायद कोई नहीं जय कनौजिया इज नॉट देयर दिव्यांश Present, ma'am. कार्तिकेय सक्सेना Present, ma'am. बेटा कल आप आए थे क्लास में Ma'am, from many days my Zoom is not working. हाँ वही हम देख रहे हैं आप काफी दिन से नहीं आए थे चलो कोई नहीं देन ख्याति किंजल Present, ma'am. हाउ आर यू किंजल Ma'am, fine. फाइन ओके Mihika is there Paurush Yes, ma'am. okay Paurush no Pratyush is there Saksham is there Present, ma'am. okay Shagun Ma'am, present. Shashank then Shivansh Shreya Ma'am, present. Ma'am, Shivansh present. yes Ma'am, Shreya Shreya is present. Taran have you joined Utkarsh Gangwar Vishesh Ma'am, Vishesh present. okay, Taran has joined Ma'am, Vyom Utkarsh present. Utkarsh is also present Vyom Ma'am, Saxena Utkarsh. हाँ जी बेटा Vyom Saxena Vyom Sharma Present, ma'am. and Yashika both Vyoms are there and Yashika is also there Yes, ma'am. fine Ma'am, have you marked me present? yes Ishi चलिए Ma'am, have you present? Ma'am, have you marked me present? Akshita yes beta I took your name and I saw your name as well just a moment हाँ जी Atharv has also beta हम we were on which this thing Courts and police. हाँ कोर्ट्स एंड पुलिस आज हम बिल्कुल कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे आज हम एक्सक्लूसिवली चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है अच्छा बेटा एक बात बताइए आप लोगों का फोर्थ पीरियड किसका है आज Ma'am, fourth. हाँ जी Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग पौरुष जहाँ तक है हाँ साइंस का. साइंस Ma'am, का computer. कंप्यूटर्स का है हिंदी ग्राम. Yes, ma'am, computer का. बेटा फोर्थ पीरियड हम ले लें आप लोगों से आप लोगों का फोर्थ पीरियड हम ले लें आज Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना उसका Yes, रीजन ma'am. ये है ना उसका रीजन बेटा ये है कि हम लोग सी सेक्शन में सबसे पीछे चल रहे हैं इन सिलेबस रेस्ट ऑल द अदर क्लासेस आई एम अहेड है ना तो हम We do a lot of discussion. what Ma'am, we have not started our final syllabus yet. beta actually the thing is I wanted to give you more of chapters in the finals but then due to certain reasons it could not be done right that is why we are confined to just 2 to 3 chapters but I have taken Ma'am, which are more important because those chapters you will be having in class 10th as well so I don't never wanted to do away with those chapters okay yes, ma'am. हाँ जी Utkarsh was saying something Ma'am, we are behind because we do a lot of discussion. nahi I know that with other classes also I do but then you people are more interactive than other classes because in your section maximum strength comes in the other sections hardly 6-7 students are there so with those 6-7 only whatever discussion we can do we do that
and whatever they want to ask or say or tell or convey, they do that. But then because the number of students are less, that is why there at least we are able to cover up the things. Okay, chaliye. Though it is always very good to discuss things, you know, isn't it? Yes, ma'am. Anji. Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. So we were on courts and police, right? No, ma'am. Ma'am, prevention against Arrest and detention. Okay. See, in this, what they are saying that sometimes, see, if you remember that, नहीं अभी हमने नहीं करा होगा. You people know about Rowlatt Act, right? Do you all know about Rowlatt Act? That No, was ma'am. nobody knows. No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, Fine, ma'am. fine. I'm telling you. See, when British were ruling over the country, during that time, they had imposed one act to stop the political activities of the nationalist leaders, those who were there. So that act was called as Rowlatt Act. And because of the imposition of that Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre happened, right? Jallianwala Bagh massacre, you people all remember? Yes, Yes. ma'am. Yes, Now, ma'am. Yes, ma'am. all the In which ma'am Chandrasekhar Azad ma'am शहीद हो गई. नहीं, वो नहीं था. जलियांवाला बाग वो नहीं था. Ma'am, the General Dyer gave the order to kill the protesters. Yes, yes. Ma'am, thousands of Indians were killed. Thousands of Indians were killed because they all had gathered in the, you know, it was Baisakhi, like 13th of April is always celebrated as Baisakhi in Punjab. So their affair was organized in Jallianwala Bagh, where people had gathered and they had no clue that what exactly was going on in the background. So because of this, what happened, when General Dyer entered that area, there was only one exit in that Jallianwala Bagh. So that exit was, covered by General Dyer, and he suddenly ordered his troops to open fire. People could not, like, there was no place to escape, so they died. Many of them, they had to take bullet on their, on themselves, and many of the people, they jumped from the fencing, but because of the height, many of them, they died. Right now, this whatever happened, it was Ma'am, many of them jumped into the well. well as well. Yes. There was a well inside, just to escape, the bullets. They jumped into the well, without realizing that jumping in the well also will not save them. Ma'am, that was only to that Chandrasekhar Azad one. In which No. ma'am That was नहीं, वो तब नहीं था, वो दूसरा था. वो इंसिडेंट काकोरी कांड की बात था बेटा. काकोरी में जो ट्रेन उल्टा था, जलियांवाला बाग में कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई नहीं मरा था, बट जो लोकल आपके जो सिटीजन्स थे, वहां के जो लोकलाइट्स थे, मैक्सिमम वो मरे थे. बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, आदमी लोग थे, जो लीडर्स, जो उस एक गांधी जी ने एक जो है कॉल दिया था फॉर स्ट्राइक, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो लोग भी वहां पे आए थे. ठीक है, पर जो आम जनता थी, जो कॉमन मैन था, दे वर नॉट अवेयर कि क्या चल रहा है पॉलिटिकली, क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है. ठीक है, दिस इज कीप इट असाइड. लाइक अब रोलेट एक्ट जो था, उसमें ये था कि रोलेट अमूमन क्या होता है, अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है, तो उसको अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स, आज की डेट में जो हमारा जो लॉ है, वो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, और रोलेट एक्ट में इस क्लॉज को हटा दिया गया था. तो जब रॉलेट एक्ट इम्पोज करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे जो इंडियंस थे, उन्होंने इसको अपोज करा. उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका हुआ कि आप बिना कोर्ट में प्रेजेंट करे आप उस इंसान को जेल में रखेंगे, मतलब एक इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, कोई टाइम पीरियड भी आप फिक्स नहीं करोगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. एज पर लॉ इस तरीके की जो चीजें होती हैं, दे आर टोटली अगेंस्ट लॉ. तो इंडिया में, हमारे कंट्री में एक ऐसा कानून है कि अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट करा है, तो उस पर्सन को विद इन 24 आवर्स आपको उस नियर बाय एरिया के मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना होगा. अगर आप उसे प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है. ठीक है, हम किसके आगे? मजिस्ट्रेट जो होता है ना, उस एरिया का जो सिटी मजिस्ट्रेट होता है, उसके आगे जो है उसको ले जाना होता है. डीएम नहीं, कोर्ट होता है, कोर्ट. हाँ, डीएम समझ लो. कोर्ट जो होता है, कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होता है, उसके आगे. ठीक है
बेटा अभी उसकी आवाज कम करो, मुझे दिक्कत हो रही है। एयरफोन्स लगाओ। हाँ जी, बोलो सक्षम, आप क्या Ma'am? कह रहे थे? हाँ Ma'am, why Britishers removed that law? No, Britishers did not remove that law. They wanted to impose it, but because of the opposition that they had to bear from the Indians, they had to do away with this law. ये तो अनलॉफुल था ना कि आप बिना किसी, आपने किसी इंसान को पकड़ लिया, आपने उसे बताया कि उसका जुर्म क्या है, किस बात की वो सजा काट रहा है। आपको पहले बताना पड़ेगा ना उसने क्या गलत करा जो उसको जेल में उठा के डाल दिया गया। तो आज की डेट में ये जो प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन है, इसमें आपको ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत क्लियर गाइडलाइंस जो है पुलिस वालों के लिए और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनके लिए कहा गया है कि आप मैम ब्रिटिशर्स नेवर लिसन टू देम। मतलब इंडियंस की तो बात सुनते ही नहीं थे मैम, बिकॉज सुनते नहीं थे, वो बात सही है हर्षित, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो कितना नहीं सुनेंगे जब चारों तरफ से जब नो चारों मैम आई एम सेइंग इन कोर्ट्स मैम, कोर्ट्स में मैम आई हैव रेड एंड सीन समवेयर दैट मैम कोर्ट्स में ले जाते थे इंडियंस को मैम, मैम कुछ मैम नो प्रोसीडिंग्स वर देयर मैम, सीधा मैम वो फैसला सुना देते थे। बेटा वो तो उस केस में था कि जब जैसे कोई पकड़ा गया बॉम्बिंग करते हुए, जैसे भगत सिंह वगैरह जो थे हमारे ये रेवोल्यूशनरीज, इन लोगों ने क्या करा था, इन्होंने बॉम्बिंग वगैरह करी, लोग मरे। अब मरे जिन जो, हालांकि लोग बहुत ज्यादा नहीं मरे, बट इन लोगों ने क्या करा, जो वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, तो मैम एक बंदा भी नहीं मरा था। हम वही तो बता रहे, मरा कोई नहीं था, बस जो उन्होंने, हम ये तो आप उसकी बात कर रहे हो जो कोर्ट में उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था, है ना? यस मैम, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, जब इन्होंने अपनी बातों को मनवाने के लिए कि भाई अंग्रेजों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, उस टाइम पे जो भी उन्होंने करा, जो भी एक्टिविटीज करी, उन एक्टिविटीज की वजह से जो भी लॉसेस हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो भाई क्योंकि उनका रूल था, भाई दे वर रूलिंग ओवर द कंट्री, तो वो जो कहते थे, जो करते थे, वही सब चीज होती थी, है ना? बट कुछ केसेस में हमेशा जो है उनकी बात को आगे नहीं रखा जाता था। देयर वर टाइम्स जब उनको जो है इंडियंस के आगे सरेंडर करना पड़ता था, ठीक है? उसका रीजन ये था कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी सतर्क हो गई थी इस चीज को लेके कि भाई हमें इंडियंस को अनॉय नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इस तरीके का कुछ करा तो उससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, फर्दर हमारी जो गवर्निंग है उसी में हमें दिक्कत आएगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो इस वजह से भी थोड़ा, वो आप सही कह रहे हो कि नहीं सुनते थे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह में वो अपने हिसाब से काम करते थे, बट एटलीस्ट कहने को ये हो जाता था कि हाँ डायरेक्टली जेल में नहीं डाला है, कोर्ट में लेके आए हैं, उनको मौका दिया है कि वो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है? Ma'am, यस मैम। ma'am, I want to ask one thing. हाँ हाँ व्योम बोलो बेटा। Ma'am, that if a criminal has done crime in India and then he went to foreign, and ma'am Indian police caught him in foreign only, so ma'am 24 आवर में उसे लाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं वो चीज अलग हो गई बेटा, ये केसेस थोड़े अलग होते हैं। हम इस समय विद इन द कंट्री में किसी भी एरिया में जो भी मतलब होता है, क्राइम होता है, क्राइम सीन होता है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये जो दूसरी कंट्रीज, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे इंडियंस जो है बाहर की कंट्रीज में पकड़े गए बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो उनको वहां के कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, वहां के लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया गया। या इंडिया में अगर कोई फॉरेनर जो है आया और उसने कोई गलत काम करा, उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया, तो उसको इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग जो है पनिश किया गया। बट आप फॉरेनर्स को ऐसे डायरेक्टली पनिश नहीं कर सकते हो, इसके भी कुछ लॉज होते हैं, ठीक है? जो आपकी कंट्री का सिटीजन नहीं है, आप उसको किस तरीके से पनिश कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए भी देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। इंटरनेशनल लॉ जो होता है, इंटरनेशनल कोर्ट जो होती है, उसके कुछ लॉज हैं जो कि सब कंट्रीज के ऊपर लागू होते हैं इन सच केसेस, ठीक है? ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू दिस। तो ये कह रहे हैं कि जो आर्बिट्रेरी जो अरेस्ट होती है और जो डिटेंशन होती है, उसके सेफगार्ड के अगेंस्ट जो है
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नॉर्म्स है जिनको हमें फॉलो करना होता है, जो कि अगर कोई भी मतलब किसी भी ग्राउंड पे अगर किसी को अरेस्ट करा गया तो उसको उसके बारे में बताया जाएगा। देन द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड उसको पूरा पूरा जो है राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसको लेके आए। दूसरा, उसको विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट किया जाता है और उसको कोई भी टॉर्चर या इल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और पुलिस कस्टडी में जो भी कन्फेशंस वो पर्सन करेगा उसको बहुत वैलिड नहीं माना जाता है। कई बार क्या होता है कि हम अंडर प्रेशर आके भी कन्फेशंस कर देते हैं भाई, पुलिस के डर की वजह से, पुलिस की मार के डर की वजह से। तो ऐसी चीजों, ऐसे जो कन्फेशंस होते हैं कि यस आई हैव कमिटेड दिस क्राइम वाला थिंग, व्हेन इट इज गिवन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी कन्फेशंस आपके कोर्ट रूम में किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द जज, इन फ्रंट ऑफ द लॉयर्स और बहुत सारे लोगों के प्रेजेंस में जो कन्फेशंस किए जाते हैं उनको जो है हमेशा जो है वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में एग्जैक्टली यही बताया गया है। चलो आयुषी, read for me. Okay, ma'am. Yes. Page 281, prevention against arbitrary arrest and detention. Prevention against arbitrary arrest and detention. In carrying out its investigation, the police may arrest and interrogate people. To ensure that police investigation falls in the gambit of ethics and human rights, the Supreme Court has clearly laid down some guidelines to be followed by the police and other investigating agencies in the arrest, detention, and interrogation of any person. These are known as the D.K. Basu guidelines. Besides these guidelines, Article 2022 of our Constitution also provides safeguards against arbitrary arrest and detention. The rights of arrested person under this right include the right to be informed of the grounds of arrest at the time of arrest, the right to consult and be defended by a legal practitioner of choice, the right to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest, the right not to be tortured or ill-treated at any point of times by the investigating agencies. Confessions made in police custody cannot be deemed as evidence since it may involve coercion or torture. Okay. I hope this part is all clear and understood to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, fine. Yes, ma'am. Okay, let us proceed on to the next part. Yes, beta. Yes. By chance, ma'am, they could not get to the magistrate, ma'am. They could have sent a letter. What? हाँ, मतलब बताओ। बाय चांस मैम वो पहुंच नहीं पाते तो मैम लेटर होता होगा उन्हें। हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं व्योम। जैसे मतलब हम मजिस्ट्रेट के पास अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के पास मैम प्रेजेंट कर पा रहे क्रिमिनल को, तो मैम लेटर तो भेज देंगे कि हम नहीं आ पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं होता है। आपको प्रेजेंट करना ही पड़ता है बेटा फिजिकली, अगर आपने उसको अरेस्ट करा हुआ है तो, एज पर दी नॉर्म्स। ओके मैम। चलो, हाँ जी, अन्वेषा को कहना है कुछ? Yes, ma'am. बताओ बेटा। Ma'am, what is the meaning of coercion? COERCION. कोएशन का मतलब इस लाइन के इस सेंटेंस में तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से या जो है मारपीट करके आप अगर इस जगह कुछ करवाते लिखवाते हो तो वो कन्फेशन मान्य नहीं होता है। जैसे क्लास में ऐसा होता है, दो लोगों ने आपस में लड़ाई करी, भाई एक टीचर का बड़ा टेरर है, तो उस टीचर के टेरर की वजह से जिस बच्चे की पिटाई हुई है वो बच्चा शिकायत ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि टीचर मेरे को डांट मार देगा। तो वो एक डर और भय, इसकी वजह से भी मतलब आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ बीइंग स्कैर्ड ऑफ समथिंग, तब भी जो है कुछ लोग जो है कन्फेशन कर देते हैं, भाई हमें पिटाई ना हो, हमारी मार ना पड़े, हमें खामखा की हमें दर्द होएगा, ऐसा होगा। कोई कहता है कि भाई पुलिस बहुत भयंकर टॉर्चर करती है, तो भाई पहले ही जो है उनसे कन्फेस कर दो कि हाँ भाई मैंने ऐसा करा,
ताकि वो मुझे मार पिटाई ना करे या मुझे डराए धमकाए नहीं किसी चीज को लेके। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, if we do a crime at beach, ma'am, if we do a crime at beach, ma'am, we are called as pirates. नहीं, योर वॉइस इज नॉट क्लियर उत्कर्ष, आप क्या कह रहे हो? इफ वी उत्कर्ष आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है बेटा, क्या कह रहे हो आप, बोलो। मैम हम्म मैम कभी ऐसा हुआ है कि मैम इफ इन एनी ओवर क्राउडेड प्लेस अ क्राइम हैज हैपेंड, तो मैम वो लोग ही उसे मजिस्ट्रेट के पास ले गए हो? बेटा डायरेक्टली लोग नहीं ले जा सकते हैं। आप कोई भी क्राइम जब होता है तो आपको उसको पहले एफआईआर उसका लॉन्च करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि हाँ इस इंसान ने करा तो पुलिस उसको पकड़ के फिर लेके जाती है। ओके मैम। या कई बार ऐसा होता है कि लोग ही उसको उठा के लेके जाते हैं कि भाई पुलिस में चलो तुमने ऐसा गलत काम करा है, तो वहां जाके एफआईआर लिखवाते हैं और कहते हैं देखो इसने ये काम करा है इसलिए आप इसके अगेंस्ट एफआईआर लिखो। ये सब चीजें मैम बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मैम बहुत सारे विटनेस हो फिर भी जस्टिस मिले। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस कई बार ऐसे हुए हैं, जैसे एक हमने आपको डाउरी केस बताया, हमने आपको एक डाउरी केस बताया था जिसमें कि जो जितने भी लोग थे, जो भी मतलब एविडेंसेस थे, वो सारे के सारे लड़की के अगेंस्ट थे। नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट दैट गर्ल, बट लड़की का जो केस था, जो लड़की के फादर ने जो केस जो है डाला था वो सही डाला था, मतलब जो फैमिली के अगेंस्ट डाला था कि उसकी जो है डाउरी डेथ मतलब उस लड़की की हो गई थी, उसको जला दिया गया था। उसकी जो मदर इन लॉ थी शायद उन्होंने गैस का बर्नर वगैरह कुछ था, गैस ऑन छोड़ दिया था। तो ये जो केस था, इस केस में डिसीजन आने में बहुत टाइम लगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़का जो था उसकी फैमिली को जो है इनोसेंट प्रूव कर दिया गया। फिर हाई कोर्ट लेवल पे भी जो है ये कहा गया कि भाई जो है जो भी एविडेंसेस हैं वो ये प्रूव नहीं करते हैं कि भाई हाँ लड़के वाले की फैमिली ने जो है लड़की को जलाया है। बट फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बहुत सारे नेबर्स जो थे वो ये बताते हैं कि हाँ किस तरीके से लड़की को टॉर्चर किया जाता था, हमें आवाजें आती थी रात में मार पिटाई की, या लड़की जो है प्लीड कर रही होती थी कि मुझे मत मारो, मेरे पापा बहुत गरीब हैं, मैं वो कहाँ से पैसे देंगे, मेरी बहनें हैं। तो ये सब चीजें बहुत रेगुलर उस बेसिस पे हो रही थी उस गर्ल के साथ। बट नोबडी केम आउट क्योंकि उनको लगा कि भाई ये फैमिली, लड़के की फैमिली थोड़ी इन्फ्लुएंशियल है, थोड़े पैसे वाले हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि हम जो है कोर्ट में गवाही तो दे दें पर बाद में हमारी जो है जान की मुसीबत हो जाए। तो लोग इन चीजों से भी डरते हैं ना। तो उस टाइम पे यही हुआ, भले ही 15 साल लगे उस फादर को पैसे वाले तो फिर भी लालची थे बेटा। अब लालची क्या बेटा, वो तो अब जो जिसको पैसे की भूख होती है वो तो फिर हर सेंस में होती है भूख। तो 15 साल लगे इस डिसीजन को आने में, पर अल्टीमेटली फादर को जो है डिसीजन फादर के फेवर में आया और फाइनली उस फैमिली को जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला सबको। सिर्फ उनके ब्रदर को नहीं मिला क्योंकि उनका जो ब्रदर था ही वाज मेंटली इनसेन, उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन चीजों में जो है इस वजह से उसको छोड़ के बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन सबको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया था बिकॉज ऑफ द डाउरी death that was in which these people were involved. Yes, Pratyush wants to ask. Okay ma'am. Hanji Pratyush. Yes ma'am. Ma'am, what is the meaning of gambit of ethics? बेटा गैम्बिट मतलब उस समय जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी कैलकुलेशन करके जो हम काम करते हैं, दैट इज गैम्बिट ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। एन एक्ट, उसका मतलब होता है एन एक्ट दैट इज that is calculated to gain an advantage at the outset of a situation. Yes, Vyom? Ma'am, a crime has happened, ma'am. पुलिस को अभी नहीं पता कि किसने क्राइम किया, तो मैम दे नीड, अच्छा हाँ दे नीड, मतलब क्राइम के बाद 24 साल नहीं, जब मुजरिम को पकड़ा जाए उसके 24 आवर्स में। हाँ जैसे क्राइम हुआ, ठीक है, पुलिस को बहुत लेट पता चला, किसी ने बताया ही नहीं कि क्राइम हुआ है। फिर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई फला फला जगह पे ऐसा कुछ हो गया है, मर्डर हो गया है। आपने देखा होगा भाई मर्डर हो गया या कोई डेड बॉडी मिली किसी बिल्डिंग में पड़ी हुई,
2 दिन बाद पता चलता है, 3 दिन बाद पता चलता है। तो जब डेड बॉडी मिली, किसी को नहीं पता है किसने मारा किसने नहीं मारा। तो उस केसेस में कोई अरेस्ट नहीं होता है, पर सस्पेक्ट्स जो है देखा पहले ही पता लगाया जाता है भाई डेड बॉडी किसकी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी मतलब पैसे वैसे का केस है कि इसके पास पैसे हो इस वजह से जो है इसको मार दिया गया हो, या बहुत सारे XYZ रीजंस होते हैं। ठीक है, पहले पुलिस उसको देखती है। पर उन केसेस में जहां पे उनको तुरंत के तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान इन्वॉल्व है, तो वहां वो पकड़ के ले जाते हैं। बट है कि एक्चुअल में उसने इसको करा है कि नहीं करा है वो उन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, उस केस जब हाँ मैम when मैम criminal मैम tries to escape, मैम उन्हें तो 24 में लाना है पुलिस को, तो उनके लिए तो मैम ये मतलब डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो वो इनकाउंटर उसी टाइम कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है ना, जब तक एलिगेशंस प्रूव नहीं होते हम कुछ नहीं कर सकते। हमने किसी पुलिस ने बोला अच्छा ओके तरन, आई विल डिस्कस इट विद यू राइट नाउ, वेट। ऐसा होता है ना व्योम बेटा कि जब हमें पता चला कि हमारे नेबरहुड में कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, हमें नहीं पता क्राइम किसने अंडरटेक करा है, पर हमें पता है कि कुछ गलत हुआ। ठीक है, तो अब जब ये चीज हुई उस समय जो भी विटनेस रहा होगा, आई विटनेस जिसने देखा होगा, वो जाके नियर बाय पुलिस स्टेशन में एक जो है FIR फाइल कर देगा। ठीक है, अब उसने तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन FIR फाइल कर दिया। ठीक, अब ये पुलिस की ड्यूटी हो जाती है कि वो जो हमने जिस इंसान ने FIR लॉन्च करा है अकॉर्डिंगली वो आइडेंटिफाई करके उसको लेके आ जाए। आस पड़ोस का मामला होता है तो इंसान तुरंत के तुरंत पकड़ के ले जाता है कि हाँ भाई उस घर से कोई है तो चलो उसको उठा के ले चलो। पर उसने एक्चुअली में करा है कि नहीं करा है ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते हो, क्रिमिनल नहीं कह सकते हो। आप उसको ऑन चार्जेस ऑफ एलिगेशन उठा के ले जा सकते हो, बट चार्जेस जब तक प्रूव नहीं होंगे तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हो। इन दैट केस आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन आपको उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है मैम अरेस्ट वाला टाइम भी मतलब क्रिमिनल को ढूंढने में भी 24 आवर्स ऐड होंगे, मतलब 24 आवर्स में से जो क्रिमिनल मिला उसका भी टाइम 24 आवर्स में घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। नहीं आप समझे नहीं मेरी बात, मैं आप एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हो। किसी पुलिस ने किसी Ma'am, it is like this. Ma'am, ma'am, on 3 p.m. a criminal got caught. arrested, Ma'am, so got arrested, हाँ next, ma'am, so got arrested. हाँ तो then ma'am अगले दिन की जब अगला दिन होगा उसका 3 p.m. मैम तब तक हमें कोर्ट में लाना पड़ता हाँ है। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के, भले ही सुबह 8 बजे पकड़ाओ तो जो है अगले दिन 8 बजे के पहले उसको ले जाना है। 4 बजे पकड़ा है तो 4 के बीच में उसको ले जाना है। 3 बजे पकड़ा तो 3 से 3 के बीच में। ठीक, मैम 24 आवर्स में या 24 आवर्स से पहले 24 घंटे के अंदर। ओके मैम, ठीक है, चलिए मैम नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ अंडरस्टूड, ओके। अब Ma'am, जैसे I have a doubt, ma'am. Can I ask? यस पौरुष, Ma'am, I want to ask, ma'am, that ma'am, the lawyers that when they go to fight a case, ma'am, first they ask ma'am, first before asking, ma'am, they ask the money, ma'am. Why, ma'am, they ask the money, ma'am? They have a fees, ma'am. And ma'am, if the person, रुको, मनी किससे मांगते हैं ये लोग? लॉयर्स मांगते हैं मनी? यस मैम, लॉयर्स मांगते हैं मैम अपनी फीस के रूप में, मैम जिनके लिए वो केस लड़ रहे हैं मैम। और मैम मैम बट गवर्नमेंट लॉयर्स डू नॉट आस्क फॉर फीस मैम। जो आपके प्राइवेट लॉयर्स होते हैं ना पौरुष, वो उनको तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, वो आपके लिए लड़ेंगे जब, तो आप वो क्यों लड़े आपके लिए? उनको कोई लालच होगा तभी तो लड़ेंगे ना, जो प्राइवेट लॉयर्स होते हैं। बट जो गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं उनको क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी ऑलरेडी प्रोवाइड करती है तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप अपने लिए लॉयर हायर कर सको, और अगर आप लॉयर हायर करते हो इन दैट केस आपको जो है फीस देनी ही पड़ेगी लॉयर को। ठीक है मैम, अगर मैम कोई लॉयर मैम केस हार जाता है तो उसे अपनी फीस नहीं मिलती, उसने क्योंकि गलत का नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, फीस तो देनी पड़ेगी, फीस तो देनी मैम पड़ेगी। मेहनत तो करी है ना। हाँ बोलो दिव्यांश। मैम मेहनत तो करी है उसने। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है दिव्यांश।
मैम उसने मेहनत तो करी है मैम, फीस क्यों नहीं मिलेगी फिर उसको? बिल्कुल फीस तो मिलेगी, क्यों भाई, जो भी केस से रिलेटेड चीजों को इन्वेस्टिगेट करना था, जिसके बारे में पता करना था, वो सब तो उसने करा ही। हार गए वो अलग चीज हो गई भाई, मे बी आपका पार्ट बहुत वीक रहा होगा, आप एक्चुअल में कल्प्रिट हो गए, इसलिए जो है वो नहीं अपना आपको जो है नॉन गिल्टी प्रूव कर पाया, है ना। Okay, ma'am. चलो Ma'am, the lawyer who is ma'am supporting ma'am the culprit, ma'am हम्म। he should also be fined ma'am because he is supporting the wrong person. बेटा अब लॉयर की क्या गलती है अगर वो लॉयर। That only I think. हाँ नहीं, ऐसा होता है ना, देखो डॉक्टर के पास आप गए, जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताओगे आपको क्या बीमारी है, तब तक वो इलाज कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। मैम फिर उस लॉयर को मैम उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मैम दे देनी चाहिए मैम। मैम फिर बेफालतू में मैम टाइम भी वेस्ट होएगा, और फिर ऊपर से मैम अगर वो जीत गया मैम तो फिर मैम एक इनोसेंट को मैम फिर गिल्टी ठहरा दिया देखो जाएगा। देखो ऐसा होता है ना बेटा, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जो इनोसेंट होता है उसको पनिशमेंट मिले, बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि जो गलत होता है उसका कहीं ना कहीं प्रूफ तो मिल ही जाता है। और इंसान ये सोचे, ये चाहे कि मैं जो है साफ साफ निकल जाऊं किसी उससे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती हैं, वो टाइम टेकिंग हो जाती हैं एट टाइम्स, जब कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं, बट सोल्यूशन उसका मिल जाता है, कहीं ना कुछ एविडेंस जो है वो क्रिमिनल छोड़ ही जाता है। आपने देखा होगा ये चीज, है ना। Yes, ma'am. Time, यस ma'am. मैम। इतना रहो मैम, लेकिन छोड़ देते हैं. हाँ तो टाइम लग जाता है, जैसे हमने बताया, तो उसको उस आप सोचो, जो लड़की की डेथ हुई डाउरी केस में, उसके फादर की एज काफी अच्छी खासी थी, बट क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो वो लड़ते गए, मतलब वो आखिरी लेवल तक गए, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि जो गलत है उसकी मैं सजा दिलवा के रहूंगा। पहले ये हुआ कि भाई नहीं, ये मतलब फैमिली की गलती नहीं है, अपने आप जो है वो जलाने गई होगी, बुझ गया होगा, या उसी की गलती रही होगी क्योंकि किचन में वही काम करती थी। बट फिर जब फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में गया केस, वहां पे जब प्रॉपर दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को भी देखा गया। तो उस माइन्यूट डिटेलिंग में भी कई देखो 15 साल का टाइम लग गया। ठीक है, 15 साल का टाइम बहुत होता है बेटा किसी भी उसके जजमेंट में, बट अल्टीमेटली पनिशमेंट मिली। तो इनोसेंट जो है कभी भी जो इनोसेंट होते हैं उनको कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, बशर्ते उनको जो है इनोसेंट प्रूव करने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस, Time. है ना। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस मैम बस 15 साल में मैं वहां